they are going to offer if they give me a PPO, it is lesser than that. So Yes, will it be I possible? know that. I know that. Vic, can I speak on this? Okay, sir. ITC always provide you for first year initial will be 4.5. 4.5 will be the ITC first year package, that is 28,000 to 242 rupees. After initial training of 1 year, you will be then getting plus जो भी आपका बढ़ेगा 32 समथिंग प्लस आपको पर डे 1500 रुपीज. ये अगर आपको पता नहीं, आपको पता करना होगा अपने जो सेल्स ऑफिसर्स जो भी आपके साथ काम करते हैं, जो जिनके अंडर में आप काम करते हैं, उन लोगों को पर डे घूमने का मिलता है. तो वो अगर समझ लो 30 दिन है, 30 दिन को तो कोई घूमेगा नहीं. तो आई अंडरस्टैंड कि मेरे जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन किए भुवनेश्वर में जो भी काम कर रहे हैं आईटीसी में फ्रॉम लास्ट 3 years, तो उनसे बात हुआ तो बोले सर 20 डेज का कैलकुलेशन लेके चलते हैं हम लोग, 20 डेज इंटू 1500, सो उतना आपको मिल जाता है प्लस आपका सैलरी. तो आपका पैकेज उसी हिसाब से काउंट होता है. इसीलिए आईटीसी में जो गया एक बार वो छोड़ता नहीं आईटीसी. Okay, sir. Yeah, that's the reason I'm making you clear. That's 4.5 is the package that they are going to offer you, and उसमें मुझे कोई परहेज नहीं है. This is ITC. ITC में कभी कोई इशू नहीं होगा आपको. हाँ, फर्स्ट ईयर आप लोग बहुत तड़पोगे, बोले कि सर इतना कम सैलरी में कैसे काम करेंगे, बट दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू रिवाइज द सैलरी बिकॉज आई एम टॉकिंग टू द आईटीसी एचआर कि एटलीस्ट मेक इट 5.5. Okay, sir. Thank you. Yeah. Guys, any more questions? We have time. I have enough time. I can bore you till 9 o'clock. कितने लोग नए नए ज्वाइन किए अभी तक उनको पता नहीं होगा. यस श्रेया. Good evening, sir. Sir, as you mentioned about the example that if we get selected in the 8 lakh fixed package and we can apply for other companies too, sir, will there be any restriction if the company is of 8 lakhs only but the profile is different? We can select that also if we get selected in both companies. See, I said one thing. If you got an internship offer, Yes, sir. and the after completion of internship you are then going to get 8 lakhs, you will be given a chance. But if you got a package, a confirm offer from any company with a let's see you got a package of 7.5 and that is from Tata Technologies, so that means you are booked. You won't be allowed for any more further companies because I cannot take a step against Tata Technologies. That is very important for us. Same with TCS, same with Deloitte, same with some A-frame companies where we basically think that company is going to help us. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Sir, I have one question. Yes, ask me. Sir, wait a minute. 1 second, sir. The colleagues over there is. Sir, my question is this, sir. Whatever I'm doing my internship in a particular field, but the field I want to choose for the placement is quite different. Like I'm currently doing in sales and marketing. What I want to do is at least like a consultancy or the other field in marketing. So would it be any problem in doing the placement time that they will ask that, because I do not possess any work experience. So would it be cause any problem during the placement regarding that? Ajay, first of all, you are doing in sales and marketing, pure sales and marketing field, correct? Yes, sir. We are into cold calling. You cold calling, okay. And you want to do in something in consulting firms. Yes, sir. So more like PwC and EY. Okay. Now, first of all, this is internship. Welcome to internships first of all. So internship में इसके अलावा आपको कुछ और काम मिलेगा नहीं, ठीक है? यहाँ पर कोई बच्चा बोलेगा कि सर मैं तो बहुत उखाड़ के आ रहा हूँ, मैं इंटर्नशिप के बारे में सीधा बोलता हूँ, कोई बच्चा काम नहीं कर रहा है. आपको पता है इंटर्नशिप का मतलब क्या है? सब अपने अपने जगह पे सही है. Sir, we are working 10 hours 6 days a week, sir. हाँ, क्योंकि आप इंटर्न हो, समझो. यू आर फ्री के, मतलब अगर मैं आपको अलग वर्ड में बोलूं अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन समझो फ्री के लेबर्स पता है ना, फ्री के लेबर्स हैं. फालतू का हमको 10,000 15,000 500 रुपए के हिसाब से दिया जा रहा है. सच्ची बात यह है, फ्री के लेबर्स. अगर किसी को खराब लग रहा है, आई एम रियली सॉरी, बट दैट इज ट्रूनेस. मैं खुद काम किया हूँ. सुबह 8:30 बजे मेरे को मेरा बॉस बुलाता था, रेलिगेयर फाइनेंस. 8:30 बजे भुवनेश्वर में था मैं, मतलब
25 किलोमीटर से दूर आता था, 8:30 बजे पहुंचता था, वो मिलेगा हमको कितने बजे? शाम के 7:30 बजे, वो भी कितने? आधे घंटे के लिए। अरे आप लोग आए हो, हम भूल गए, सॉरी आज मीटिंग नहीं हो पाया। आप लोग में से बहुत सारे बच्चे बोलते सर मेरे को मीटिंग करना है, कंपनी से बात करनी है, कोई नहीं मिलने वाला, प्रोजेक्ट आप बनाओगे। मैं एक चीज बता रहा हूं, whatever field you have been selected, whatever mold and how you going to present a project will be depend on you. आप लोग के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे वो प्रोजेक्ट अच्छा जाए। मैं नहीं करूंगा कि मैं नहीं समझूंगा कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। अगर आपने बोला कि सर मैंने कन्विंस किया है, आई यूज्ड टू कॉल पीपल देन गोइंग टू मीट द पीपल एंड उसके साथ हम काम करते थे, मैं वही समझूंगा। ओके, अजय फोन करता था, अपॉइंटमेंट लेता था, फिर आगे जाता था। दिस इज द वे दैट द इंटर्नशिप में आपको सीखना, क्योंकि इससे ज्यादा हम लोग को इंटर्नशिप में मिलेगा नहीं। हमको क्या मिलेगा? जब मैं जॉब करने जाऊंगा मुझे क्या एक्स्ट्रा मिलेगा कि मेरे अंडर इंटर्नशिप आएंगे, तब आपको अपना चेहरा नजर आएगा, साला मैं ऐसा था, हम ऐसे थे, हम ऐसे काम करते थे, अब इनसे कैसे काम करवाया जाए। सोचो, मैं भी किसी दिन इंटर्न था, मेरे को यहां पर भी बुला के ऐसे समझाया जाता था जैसे मैं आज आपको समझा रहा हूं। मैं 10 साल से वही कर रहा हूं, सीखने की कोशिश, हर एक बैच के साथ अपने आप को मोल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं कि कितना जल्दी आपसे कनेक्ट हो सकूं, लेकिन नहीं हो पाया आपके बैच के साथ अभी तक, क्योंकि हम लोग नहीं मिले। लास्ट वाला बैच बिना मिले चल दिया, बाय बाय हो गया। ये उससे पहला वाला बैच आधा मिला क्या, टिल मार्च 17 कॉलेज बंद हुआ था, उसके बाद वो लोग भी गायब। सो लास्ट 2 साल से तो मैं ऐसे ही बिना बच्चों को देखे ये प्रोसेस करा रहा हूँ। पर हम तो मिले थे। आप लोग मिले हो कम बच्चे ना, मैं वही बात बोल रहा हूँ। अभी तुम लोग जब वापस आओगे, व्हेन यू विल बी कमिंग टू द कैंपस, जब एक बच्चे का प्लेसमेंट होगा, पहले बच्चे का प्लेसमेंट होगा, अगर पूरे बैच में आग नहीं लगी और उसकी सबका मुंह नहीं फूला और वो बच्चा राजा और रानी जैसे बिहेवियर नहीं पाया, मैं अपना नाम चेंज कर दूंगा। क्योंकि जिस दिन यस कॉलेज ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन मोड में? नो ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन। यू आर कमिंग बैक फॉर ऑफलाइन नाउ, रेडी हो जाओ, बहुत हो गया ऑनलाइन, बहुत आराम से एग्जाम दे दिए। कोविड सबके लिए है, मेरे लिए भी है, मैं भी अभी मास्क लेके घूमता रहता हूँ, जहां जाता हूँ मास्क में जाता हूँ, बस अभी आपके सामने बैठा हूँ और बिना मास्क में। हो गया आपका छुट्टी, आराम से 1 साल बिता लिया, वापस आओ, अब एंजॉयमेंट हो गया, अब वापस आओ सीधा यहाँ पर। सर वन मोर थिंग, कॉलेज जैसे 11 तारीख को खुल रहा था ये अजय, यू वांट टू कंटिन्यू? Just one thing, Tarun. I want to ask, sir, like you said, a few people have been released from their internship. Sir, if someone, God forbid, released from his internship after the 2 months, will that internship would be considered as completed or not? अगर किसी कंपनी से मुझे मेल आता है कि फॉर एग्जांपल मेरा नाम अमित रेलिगर फाइनेंस से रिलीव कर दिया गया है एंड ही इज नॉट गोइंग टू पार्ट ऑफ दैट कंप्लीशन, और उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, इसका मतलब मैं एसआईपी में अंडा मिलेगा मुझे, अंडा। सीधा बात बता रहा हूँ, अगर कोई बच्चे का मेल मुझे आया कि वो रिलीव कर दिया गया है और उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो आपको दिखाना है जब आप वापस आओगे, तो यू विल बी गेटिंग ए बिग 0। और अगर 0 मिल गया मतलब आप पूरे साल के लिए बाहर हो गए प्लेसमेंट से। किसी बच्चे का बैक रह गया है, प्लीज क्लियर करके आना भाई, मैं पहले से बता दे रहा हूँ। डू नॉट कीप एनी बैक पेपर विथ यू व्हेन यू कम बैक फॉर द 3rd सेमेस्टर, यू विल नॉट बी अलाउड। यस अभिजीत सर, बैक पेपर इन इंटर्नशिप और एनी एकेडमिकल पेपर यू आर सेइंग अबाउट? बोथ। अगर इंटर्नशिप में 0 हो गया तो वो तो बैक पेपर ही हो गया, तुमको फिर अपना इंटर्नशिप अपने जूनियर के साथ करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अरिजीत, यस सर, जो इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट है हमको मेल में आएगा या रिलीज होने से पहले ही मिल जाता है मोस्टली? वो कंपनी से हम बात कर लेंगे, तेरी कंपनी के साथ मैं टच में हूँ, सो डोंट वरी। जिस कंपनी के साथ मैं टच में हूँ मेरे को पता है, जहां पर मैं उन बच्चों के लिए बात करूं जो लोग खुद से अरेंज किए हैं, जो लोग खुद से कर रहे हैं, उनके लिए मैं कर रहा हूँ। जिन लोग हम लोग के थ्रू में कर रहे हैं उन लोगों के मुझे मिल जाएगा, जिसका नहीं मिलेगा उसका मैं कॉलेज उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। Yes, Tarun, you're saying something, Tarun? Yes, sir. मैं बोल रहा था कि फाइनल प्लेसमेंट में कैन बी सीट फॉर द 2 कंपनी, अगर दोनों पैकेज अगर जैसे 8 लाख है दूसरा 9 लाख है, इन सेम डोमेन में कर रहे वेरी, सो
तरुण, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी बच्चे का कैंपस हो जाता है आपके बैच में, लिटरली he or she is out of campus placements because I have to place 334 students. So अगर किसी बच्चे का हो जाता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 15 लाख 16 लाख की कंपनी आती है और वहां हमको लगता है कि जो बच्चे हैं वो उसमें ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर पाएंगे, तो हम अलाउ करते हैं कुछ कंपनीज को, जो कि कॉलेज के अथॉरिटीज बात करने के बाद करेंगे। ऐसा नहीं कि हर कंपनी को अलाउ हो जाएगा। मैं टीवीएस को कभी अलाउ नहीं करूंगा, मैं टाटा मोटर्स को कभी अलाउ नहीं करूंगा, मैं ये क्या कहते हैं टीसीएस के साथ कभी गेम नहीं खेलूंगा, मैं आईटीसी के साथ कभी गेम नहीं खेल सकता, क्योंकि दीज आर द कंपनीज हु हैव नेम्स। इनके साथ काम करोगे तो इनके साथ आप आगे बढ़ने के साथ किसी भी कंपनी में जाओगे, आपका फायदा मिलेगा। ओके सर। अरिजीत, आपका कुछ क्वेश्चन था? Same question, the same question. ओके, will be there is an aptitude test? It depends, guys. अगर वो लोग करना चाहते हैं तो वो लोग एप्टीट्यूड टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट, आप लोग का क्या कहते हैं वीडियो रिज्यूमे। एक बात बताओ, आप लोगों को वीडियो रिज्यूमे बनाना आता है? यस सर। किसने पहले यस बोला? पहले किसने यस बोला? यतिश्री? यस। अभी एक बात पूछूं? यस। सबके सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करो ऑन वीडियो। सर, आई एम एट द ऑफिस राइट नाउ। ठीक है, इसलिए छोड़ दिया तुमने, पता है मुझे। इतना याद रखो, वीडियो रिज्यूमे बनाओगे पहले अपना वीडियो तो ऑन करना सीखो। मैं अभी किसी को नहीं बोला कि सब लोग ऑफ रख सकते हो। मैं ये अनऑफिशियल मीटिंग है, आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग बिकॉज मुझे पसंद नहीं है कि कोई बच्चे को मैं जबरदस्ती करूं। इट्स ऑलमोस्ट योर विश। लेकिन जब भी कोई ऑफिशियल मीटिंग होगा, जब भी मैं बोलूंगा सूर्य सर आ रहे हैं या फिर भुवनदीप सर आ रहे हैं कि कोई भी फैकल्टी आता है, एंड दिस इज अ courtesy call that you should be on your cameras, not here, but in that meeting definitely yes, definitely, because कल जब आप किसी टीम को हेड करेंगे और वहां पर आपके जो कलीग्स और आपके साथ जो करेंगे वो ऐसा काम करेंगे, तब पता चलेगा कैसा लगता है। तब फिर बोलोगे यार सच बोला था, सर ने कहीं पर लग गया हमारे। चलो, मैं ज्यादा टाइम और नहीं लेने वाला, बट स्टिल इफ somebody has some questions we can go ahead. There is some question coming up. सर क्लासेस हमारे हैं 3 महीने का ही है, 2 अगस्त को खत्म होगा, तो क्या करें? ओके, देखो बहुत सारे बच्चों ने तो बहुत सारी गलती की है। आज एक मेल जाएगा उन बच्चों को जिन्होंने अपना रेस्पॉन्स शीट में रेस्पॉन्स नहीं भरा है। इतना बोल के भी 200 मतलब 286 बच्चे वो लोग भरते हैं, जिसमें से डबलिंग करते 200 कितना 71 बच्चों ने अपना रेस्पॉन्स दिया है। अगर तुम रेस्पॉन्स नहीं दोगे तो मैं क्या कर पाऊंगा इसका? कुछ नहीं। आप लोग रेस्पॉन्स दोगे नहीं, खुद ब खुद 3 महीने का लेके पकड़ के बैठे हो कि मेरे को तो 3 महीने का करना है। मैं अपने बस उन्हीं बच्चों का अप्रूवल कराऊंगा जिन्होंने रेस्पॉन्स शीट में नाम दिया हुआ है, और बाकी लोगों को कुछ नहीं करूंगा। उन लोगों को बोलूंगा चुपचाप 11 तारीख को अपना बोरिया बिस्तर बन के आ जाओ। ठीक है, पहले रेस्पॉन्स शीट में सारा चीज दीजिए। आज में एक मेल जाएगा जिसने रेस्पॉन्स नहीं किया, मैं उन लोगों को स्पेसिफिकली पूरा बैच को करके करूंगा ताकि उनको समझ में आया कि हाँ हमने गलती की। डच बिग 4 फर्म कम, यस आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता भी सकता हूँ कि जैसे PwC ऑलरेडी गोइंग टू कम इन मंथ ऑफ नवंबर। EY का अभी बात चल रहा है, डेज का कंप्लीट नहीं हुआ। डेलॉयट डेफिनेटली इन द मंथ ऑफ सितंबर फर्स्ट उसका PPT होगा, उसके बाद फिर लोग अपना ऑनलाइन टेस्ट करेंगे। और कौन सा रह गया? और कौन सा रह गया बताओ? Deloitte और KPMG आएगी भाई। देखो लास्ट ईयर एक ही बच्चे लेके गए तो उसको पसंद नहीं आए थे बच्चे हमारे। ब्लैक रॉक आएगी। ब्लैक रॉक लास्ट टू लास्ट ईयर आई थी, 2020 बैच के लिए एक बंदा का हुआ था जिसका प्लेसमेंट हुआ था किसी बायजूस में, फिर उसको चांस मिला था। तो मैं वही बोल रहा हूँ, देखो उसका बायजूस में हुआ था, कॉलेज ने उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि भैया उसको काम नहीं मिल रहा है, उसको दोबारा बुलाया गया, दोबारा बिठाया गया। इन मंथ ऑफ मई 26 में ब्लैक रॉक आई थी और उस बच्चे ने अकेले वो लेके गया जॉब। देखो पीपीओ क्लैरिफिकेशन किसी को भी तुम लोगों को अभी नहीं दिया जाएगा। जो लोग कॉलेज के थ्रू में गए हैं पीपीओ क्लैरिफिकेशन के लिए यू नीड टू वेट, बिकॉज मैं आपको बता दूं कंपनी बहुत चालाक होती है। वो आपको बोलेंगे हम लोग आपको 5.5 लाख में बंद कर देंगे। आप लोग बोले हाँ हम रेडी है, हमको तो पीपीओ से मतलब है। नुकसान आपका है, मेरा कुछ नहीं होगा।
मैं तो मना करूंगा, मैं तो बोलूंगा कि भैया आप पीपीओ क्यों ले रहे हो, क्योंकि कॉलेज को बात करने दो पैकेज बढ़ा के। हम लोग हमेशा चाहेंगे कि अगर कोई बंदा आपको पीपीओ देता है तो एटलीस्ट 8 से 9 लाख के बीच में दे, उससे कम ज्यादा ना दे, ठीक है। पीवाई ऑफर पीपीओ हो गया, परफेक्ट सोल्यूशन। और एक चीज है, किसी को अगर पीपीओ मिल जाता है एंड वो बोलता है कि वो सर मेरा हो गया है वहां पर एंड मैं उसमें कर लूंगा, नहीं, यू नीड टू फर्स्ट इन्फॉर्म द कॉलेज, देन ओनली यू हैव टू गो, उससे पहले आप नहीं कर सकते। एनी मोर क्वेश्चंस? सर एक मेरा क्वेश्चन है। यस सर, जो बिग 4 कंपनियां आती है वो एप्टीट्यूड टेस्ट लेती है? यस, एप्टीट्यूड विल बी द मस्ट फर्स्ट एग्जाम, मतलब जो एग्जाम, वन टाइप ऑफ एग्जाम। जैसे फॉर डेलॉइट में अगर कोई बीटेक वाला बंदा है तो उसको ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद डायरेक्ट पीआई। अगर डेलॉइट में टैक्सेशन वाला बंदा है तो उसके लिए 5 टेस्ट देने पड़ेंगे। पहला टेस्ट क्या होता है? ऑनलाइन वर्सन टेस्ट। सेकंड टेस्ट होता है आपका इंग्लिश टेस्ट। हाँ, और थर्ड टेस्ट होता है आपका एक्सेल। बस पूरा तरुण को पता है, तरुण को पकड़ लो। सर तो डिफरेंट पोजीशंस के लिए आते हैं, बीटेक वालों के लिए अलग और जो टैक्सेशन के बंदे के लिए उसके लिए अलग। यस, बीटेक के लिए जो आएंगे वो ओनली फॉर बीटेक स्टूडेंट बैठेंगे। टैक्सेशन के लिए जो आएंगे वो सिर्फ टैक्सेशन मतलब बीबीए एंड बीकॉम स्टूडेंट्स बैठेंगे जिनका फाइनेंस है एमबीए में, वरना अगर किसी का फाइनेंस नहीं है वो नहीं बैठ पाएगा। यस अभिजीत। Sir, I want to ask that the 4 big firms that come into our campus, they only have BCom or commerce students only, or BSc or BTech students get the opportunities? See, Deloitte में आपको बीटेक स्टूडेंट बैठता है, Deloitte में ये क्या कहते हैं बीकॉम एंड बीबीए स्टूडेंट बैठते हैं, EY में आई थिंक सारे बैठते हैं। उसके बाद आपका कौन सा रह गया? पीडब्ल्यूसी में बीकॉम एंड बीबीए बैठता है, और कौन सा रह गया? KPMG में सारे बैठते हैं। मॉर्गन स्टैनली सर? मॉर्गन स्टैनली भास्कर अभी तक मेरे कॉलेज में नहीं आया, देखते हैं। मैं खुद उसमें मेरे टाइम से, मेरे लास्ट टाइम आया था मेरे बैच में, उसके बाद कभी आया नहीं है। बायोटेक स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा चांस भाई, ऐसा नहीं कि चांस नहीं मिलेगा। डेफिनेटली सौमित्र यू विल गेट सम चांसेस, बट फॉर बिग 4 में चांसेस मिलना, मैं बोलूंगा सिर्फ केपीएमजी एंड EY में चांसेस ज्यादा मिल सकती है। yes, अभिजीत स्वाइन। सर वो जो अटैच बाथरूम वाला सिर्फ गर्ल्स को गया था, हमारे नहीं आएगा क्या सर? मतलब सर वो एक मेल आया था ना, 10,000 यू कैन अवेल अटैच बाथरूम प्रीमियम रूम। कौन सा कंपनी? टॉकिंग अबाउट हॉस्टल सर। सर हॉस्टल की बात कर तो हॉस्टल चाहिए। अबे हॉस्टल में लड़कों के लिए कुछ नहीं होता है। वही तो सर। सर वो डी ब्लॉक वाला तो हॉस्टल है ना, जो अटैच वॉशरूम। हाँ तो वो लड़कियों का है। वो लड़कियों का है, लड़कों के लिए भी तो सर, लड़कों के अटैच कौन सर अजय जाके घूम के आया, बोल रहा था अजय वहीं पे ले गया। सुनो भाई, जाता था, मैं हॉस्टल वाला हूँ, ठीक है, मैं हॉस्टल वाला हूँ, यही हॉस्टल मिलेगा, ये जो सामने जो नहीं सर डी ब्लॉक वाला प्रियांशु सर पूछ के आया था। सर 2 महीना अजय सपना सजा के रखा था, उस हॉस्टल में जाएगा। वहाँ सिर्फ लड़कियां रहेंगी, फर्स्ट ईयर अरे की बस लड़कियां, सर, वहाँ सिर्फ फर्स्ट ईयर की लड़कियां रहेंगी, तुमको भी चांस फर्स्ट हाँ सर अजय भी तो फर्स्ट ईयर का बेबी है। तेरे को अगर, हाँ नहीं अजय को अगर रहना है तो तेरे को फिर वो जो क्या कहते हैं दूसरे कैंपसेस होते हैं, दूसरे कैंपसेस में जाके रहेगा तू। नहीं सर, हम अपने कैंपस में रहेंगे सर, हमें तो अपने में हॉस्टल को यार एक ही तो कितना एक कमरे में सर, क्या फर्क है? बट हम तो सर रहे थे सर उसमें, बीबीए के टाइम में तो लड़का तो अलाउड था सर, उसमें बीए वाले भी रहते थे सर, ब्लॉक डी में सर। कौन सा वाला ब्लॉक डी? अपने अंदर में सर? हाँ सर ये लोग केएसआरएम डी ब्लॉक का बात बोल रहे हैं सर। केएसआरएम वाला मैं नहीं बोला, मैं एमबीए का बोल, केएसआरएम डी वाले में तो उसमें सब लोग अलाउड है, उसमें केएसआरएम डी वाला जो वन सर, तो वही बात हो रहा है सर, ब्लॉक डी का ही बात हो रहा है। वहाँ पर अलाउ नहीं होगा, एमबीए वाला एमबीए इस तरफ। सर वो जो बगल में है हमारे हॉस्टल के डी ब्लॉक वाला, जहाँ पे विंडो एसी लगा है, वहाँ पे जहाँ पे लॉन्ड्री वाली बैठती थी। हाँ वही बोल रहा हूँ, वो वाला लड़कियों के लिए, वो व्हाइट वाला कलर का बिल्डिंग लड़कियों के लिए, लड़कियों के लिए। हाँ वो वाला बिल्डिंग, और उसके आगे वाला बिल्डिंग लड़कियों के लिए, सिर्फ ये वाला बिल्डिंग लड़कों के लिए, कि उतने लड़के आते हैं। ओके सर स्मित में नाइंसाफी क्यों?
हाँ सर। क्या जरूरत है हमको? अब मैं अभी यहाँ पर कैसे बोलूं? नहीं सर, हमको कोई जरूरत नहीं सर, हम लोग को सर हमको लेना भी लड़कों को नहीं बुलाना है। पड़ेगा, प्रॉब्लम हो जाएगा तुम लोगों को। ऑफिशियल मीटिंग में मैं बोल नहीं सर सकता। 11 को रिपोर्टिंग है क्या? 11 तारीख 11 को रिपोर्टिंग हम लोग का 11 है कि उससे पहले? नहीं 11 तारीख को रिपोर्टिंग है, आप लोग को 11 को भी आना है, ताकि आप लोगों को अपने अपने रूम्स जो भी अलॉटेड होंगे वहां पर आके आपको पहले हॉस्टल के क्या कहते हैं ऑडिटोरियम में बैठना पड़ेगा। ऑडिटोरियम में बैठ, सर जो 2 महीने बिता लिया उनके लिए भी, जिनका रूम अलॉटेड है उनके लिए, उनको क्या बोल सकते हैं? हाँ सर, वो तो हम तो सीधा कमरे में घुसेंगे अपने। बस तुम लोग अपना कमरे में घुसेंगे। और क्वेश्चन पूछो, ये क्या लिखा है? अप्लाई फॉर अदर पैकेजेस इफ एनी, क्या है ये? नहीं, एक कंपनी में होने के बाद दूसरे कंपनी में अलाउड नहीं है, अनटिल अनलेस यू विल बी अलाउड बाय द कंपनी, सॉरी अलाउड बाय द मैनेजमेंट। अगर किसी बच्चे का 8 लाख में हो जाता है, बिकॉज वी हैव 334 स्टूडेंट्स, सो वी हैव टू प्लेस ईच एंड एवरी स्टूडेंट, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स कि बीटेक नहीं है जहां पर 5 ऑफर्स में एक बच्चे को दे दो। यस, हाँ ऐसा हो सकता है कि like you are sitting for one campus, that is TCS, you are sitting for another campus, that is Tata, you are sitting for another campus, that is some campus, और सबका रिजल्ट नहीं आया और सबका रिजल्ट एक साथ आया, then you will be informed कि भैया आपको 3-4 कंपनी में लग गया है, उसमें कॉलेज का कोई दोष नहीं होता, लेकिन वो कंपनी की प्रॉब्लम होती है। तो आप कहाँ ज्वाइन करेंगे आपको वो बताना पड़ेगा, 24 आवर्स के अंदर आपको बताना पड़ेगा आप कौन सी कंपनी में ज्वाइन करेंगे। बाकी सब कंपनी को मना कर दिया जाएगा, उनको रिक्वेस्ट किया जाएगा कि किसी और बच्चे को रिप्लेस किया जाए। यस वेदांत। सर 8 लाख से कम होने से क्या मतलब बैठ सकते हैं? खाली 8 लाख से मिनिमम? 8 लाख से कम नहीं है। देखो अलीवा, कंपनीज आएगी 6 लाख फिक्स का कंपनी आएगी, 12 लाख फिक्स का कंपनी आएगी। सो कंपनीज तो आएंगी, आप बैठेंगे, आप कंपनी को देख के रजिस्टर करेंगे, आप जॉब रोल को देख के रजिस्टर करेंगे। अगर आपका हो गया, आपको चांस मिलेगा डिपेंडिंग ऑन द कंपनी में, वो कंपनी में कितने बच्चे गए। अगर समझ लो उस कंपनी में केपीएमजी एक लड़की गई थी इस बार, तो दोबारा से मैं उस केपीएमजी में तो उस लड़की को दोबारा चांस नहीं दे सकता ना। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम। यस वेदांत। सर जैसे सर मेरी जो SIP है वो 28 ऑफ सर जुलाई, मतलब सर नेक्स्ट मंथ हो रहा है खत्म, और सब कंप्लीट होके सर्टिफिकेशन मिलने में मतलब 1-2 अगस्त तक मिलेगा। बट सर रिपोर्टिंग वो जो था वो शायद 11th है जुलाई, तो मैंने भुवनदीप सर को भी ये प्रॉब्लम बताई थी, तो कहे थे वो चलिए देखेंगे। बट मतलब ऐसा है, तो आप कह रहे हैं 11th को आना ही आना है, तो उसके लिए आप कुछ बताइए। नहीं वेदांत, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर किसी का इंटर्नशिप खत्म हो जा रहा है 11 से पहले, फॉर एग्जांपल 8, 9, 10 को खत्म हो जा रहा है, सो सेम आएगा। और मैंने बताया था कल वो फोटो खींचते आपको भेजना था। ठीक है, अगर पेड़ की बात है ना सर, हाँ शक्तिदास सर, वो शक्तिदास ही उतना वो आवाज आ रही है उसकी, प्लीज आप कंटिन्यू करिए। सो मैं ये बोल रहा था कि जिसका हो जाता है खत्म, वो डेफिनेटली दे हैव टू कम बैक ऑन 11, दे हैव टू रिपोर्ट ऑन 11। जिसका नहीं होता है, कॉलेज उसके लिए डिसीजन ले रहा है। आई थिंक मेरे को 15 तक डिसीजन देना था, बट आई थिंक लेट हो चुका, बिकॉज आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया, और जब तक रिस्पॉन्स सबका नहीं आएगा, आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगा कुछ भी। ओके सर, तो भर दिया है वैसे जो मैं इसलिए आज बोल रहा हूँ, आज जिन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया वो लोग का मेल जाएगा, ताकि पूरे बैच को रख के मेल जाएगा, ताकि आप लोग भी उनको रिक्वेस्ट करो कि मैं रिस्पॉन्स दे दूं। रिगार्डिंग फाइनेंस कंपनीज, गाइस मैं एक और चीज बता रहा हूँ, आप लोग MBA करने आए हैं, दिस इज MBA, सो डू नॉट थिंक कि आप लोग क्या करने जाएंगे क्या नहीं करके जाएंगे। कंपनी का JD पढ़ो, रोल पढ़ो, उसके बाद अप्लाई करो। अगर आप लोग CTC देख के अप्लाई करोगे, मैं बोलूं कल अगर आपको प्रॉब्लम हुआ हमको मत बताना आके। ऑलवेज गो फॉर रोल एंड JD। अगर आपको लगता है कि वो JD में आप लोग कर सकते, फॉर एग्जाम्पल PwC 6 लाख फिक्स्ड है, उससे ज्यादा नहीं देगा वो, मैं ओपनली ये बोल रहा हूँ, PwC 6 लाख से ज्यादा पैसा नहीं देगा। 6 लाख से one more question if you don't mind. सर एक्चुअली आई हैड अ क्वेरी सर, जो पिछली बार भी मैं फोन पे आपसे पूछा था सर।
टैक्सेशन जो एसआईपी के लिए आई थी सर, उसने बी कॉम और जो कॉमर्स बैकग्राउंड के थे उन्हीं को लेके वो गई सर। मतलब सर जो बीटेक वाले जो फाइनेंस ले रहे हैं सर, उन्हें तो चांस ही नहीं मिला एक टाइप से। देन सर ये ऐसा मतलब ये अभी आप फिर कह रहे हैं प्लेसमेंट टाइम पे भी ऐसे ही रहेगा कुछ कंपनी के साथ, तो कैसे करेंगे सर ये? देखो, अगर प्लेसमेंट टाइम में डेलॉयट जब आएगी तो डेलॉयट आपको दो प्रोफाइल के लिए आएगी। एक प्रोफाइल होता है जो कि टैक्सेशन जिस प्रोफाइल के लिए एसआईपी के लिए आई थी, दूसरे प्रोफाइल होता है आपका बीटेक वाला प्रोफाइल, जिसमें आपको 3 रोल मिलेगा, मार्केटिंग, ये फाइनेंस और एक कौन सा कंसल्टिंग वाला रोल। सो डिपेंडिंग ऑन दैट यू हैव टू अप्लाई। अब जिसमें अप्लाई करोगे, जिस हिसाब से आप करोगे उस हिसाब से आपको आपकी जॉब मिलेगी सर। बट सर जैसे सर मैं स्टील प्लांट में मतलब मैंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से सर मैं कर रहा हूँ, मैं एसआईपी कर रहा हूँ भी करेंटली, एंड सर वहां से मैं टैक्सेशन डिपार्टमेंट से ही मैं एसआईपी कंप्लीट कर रहा हूँ अपनी। उससे फर्क नहीं पड़ता ना, उससे फर्क, वो तो अच्छी बात है आपने उस नहीं, आप मेरी पूरी क्वेश्चन आप सुने नहीं, आप मेरी बात सुने नहीं सर। बट द थिंग इज कि सर वो मेरी एक्सपर्टीज उसमें बैठ रही है, बट अगर डेलॉयट टैक्सेशन ही फिर मतलब लाइक मेरे को ऑप्शन ही नहीं देगा, देन वो तो एक टाइप का सर थोड़ा भेदभाव टाइप नहीं हुआ कि मतलब कि क्यों से मैं बीटेक के हूँ इसीलिए नहीं मेरे को मतलब बैठने दिया गया। उनका क्राइटेरिया वही है ना, उनका क्राइटेरिया को तो आप चेंज नहीं कर पाओगे ना। आप बताइए ना, अब आप एक कंपनी में खुद ये हो, आपको अगर चाहिए फाइनेंस के बच्चे तो आप सिर्फ फाइनेंस को देखोगे, आप मार्केटिंग बच्चे को क्यों देखोगे? सीधा सिंपल आंसर है। सिंपल आंसर ये भी, बट सर वो बीटेक वाला भी फाइनेंस कर रहा है, बीकॉम वाला भी वो फाइनेंस किया, बट सर बीकॉम को इसे उठा रहे जस्ट बिकॉज 3 साल ज्यादा वो कॉमर्स पढ़ लिया है इसीलिए। अरे नहीं, बीटेक के लिए भी अच्छा रोल है डेलॉयट में, रिस्क एंड एडवाइजरी रोल आएगा, रिस्क एंड एडवाइजरी आएगा बीटेक के लिए। अरे वो रोल इतना इजी नहीं होता है, वो रोल आप कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए तो मैं बोला ना, पीडब्ल्यूसी में सिर्फ बीबीए वाले, बीबीए बीकॉम वाले बच्चे बैठेंगे, बीटेक वाले बच्चे नहीं बैठ पाएंगे। सीधा सीधा बात, वो जो रोल है टैक्सेशन, हम लोग को लगता है कि हम लोग बहुत, मैं खुद बीटेक हूँ, फाइनेंस हूँ, मुझे पता है कि मेरे को फाइनेंस में आता है, लेकिन अगर कोई बीकॉम वाला बच्चा मुझे 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, मैं वहां पर ठग दूंगा। सच बात है, जितना मुझे मेरी औकात है मैंने उतनी फाइनेंस पढ़ के रखी हुई है। मेरे को स्टॉक मार्केट के ऊपर क्वेश्चन पूछे, मैं बता दूंगा उसको, क्योंकि वो चीज मेरा एरिया है। कोई अगर टैक्सेशन, फाइनेंशियल या फिर इसके ऊपर पूछे, मैं बता दूंगा, लेकिन बाकी सब नहीं हो पाएगा। तो जिस एरिया में हमको एक्सपर्टीज मिलेगा, उसी एरिया के हिसाब से हम लोग को करना पड़ेगा। कौन सी कंपनी कब आएगी किसी को नहीं पता है दोस्त लोग। प्लीज आप लोगों को एक ही एडवाइस है मेरी तरफ से, जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन आता है, रीड द रजिस्ट्रेशन, रीड द जेडी, देन अप्लाई। अभी भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिनको अभी भी मन है, 2 कंपनी में जिन्होंने मैंने भेजा है, यू आर इंटरेस्टेड, आपने नहीं भरा है, अप्लाई। मैं रात तक 10 बजे तक वेट करूंगा, उसके बाद क्लोज कर दूंगा। एंड आई मीन दैट कि मैं 10 बजे के बाद किसी की बात नहीं सुनूंगा, सर मुझे भरना था, सर प्लीज अभी कर दीजिए, अलाउ कर दीजिए, नहीं करने वाला। जिसको करना है 10 बजे तक करो, उसके बाद बंद। सर यस अभिजीत सर, डिलॉयट में बीएससी अलाउड नहीं होता है? नहीं रे, नहीं होता। सर आप हमारी इंटर्नशिप कितनी कम करा सकते हैं अगर 3 मंथ्स वाली है तो? मैंने वही तो बोला ना, अगर सभी बच्चों ने अगर मेरे को रिस्पांस दे दिया होगा तो मैं एक ही साथ एक कंपनी से बात करूंगा ना। अभी पता चला मैं 3 बच्चों के लिए बात कर लिया और बाकी 3 बच्चे लोग बोल रहे हैं कि 3 दिन के बाद भेज जाए, तो इसलिए मैं आज एक मेल करूंगा कि ये बच्चे लोग जिन्होंने अपना रिस्पांस नहीं दिया है, प्लीज ऐसे अपना रिस्पांस दे दो, ताकि हम लोग एक बार में सभी कंपनी से बात करके खत्म कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग का जुलाई में ही खत्म हो, ताकि आप लोग, बिकॉज मुझे आप लोग यहाँ पर चाहिए। वी हैव टू स्टार्ट योर ट्रेनिंग अगस्त महीने में किसी भी हाल में। अगस्त महीने में ट्रेनिंग नहीं हुआ तो आप लोग समझ लो फर्स्ट आपका ऑनलाइन टेस्ट शुरू हो जाएगा अगस्त लास्ट वीक से ऑनलाइन टेस्ट शुरू हो जाएंगे, ऑनलाइन मॉक ऑनलाइन टेस्ट। हो सकता है कुछ कंपनी के ऑनलाइन टेस्ट भी खत्म हो जाए आप लोग। टीसीएस का प्रोसेस शुरू हो जाता है आपका अक्टूबर ये फर्स्ट वीक से। बर्जर पेंट का ऑनलाइन टेस्ट शुरू हो जाएगा अभी आई थिंक अगस्त में। एशियन पेंट का ऑनलाइन टेस्ट शुरू हो जाएगा सितंबर फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में। सो सबका प्रोसेस अपने आप अपने जगह पे है। आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ पहले जेडी पढ़ो प्लीज। सीटीसी अगर देख रहे हो मैं आपको बता रहा हूँ सीटीसी पे जाना है, अच्छी बात है, अच्छी आप लोग को सूट करता है,
लेकिन जेडी पढ़ो, जेडी एंड रोल, दिस इज अ मेजर थिंग दैट यू हैव टू थिंक। वरना आपके दो सीनियर जैसे अभी तड़प रहे हैं वैसे आप लोग भी तड़पोगे, सर मेरे को 15 लाख का जॉब मिल गया लेकिन वो जॉब में टिक ही नहीं पा रहे, फायदा क्या होगा? सिर्फ कॉलेज में ना एक फोटो लग जाएगा कि जेनामनी अमित कुमार 15 लाख यहाँ पर, और उसको वहां पर मैं खुशी का जाहिर कर रहा हूँ, लेकिन पूरा बैच बोलेगा नहीं तो जॉब से निकाला जा चुका है। ठीक है, सो दिस इज माई ये। और मैं जैसे आज 17th है, विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट सैटरडे, सेम थिंग। मैं आप लोगों को परेशान करना शुरू करूंगा अभी, हो सकता है नेक्स्ट सैटरडे, नहीं तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट सैटरडे। मैं आपको बोल रहा हूँ परेशान इसलिए करूंगा आप लोगों का एसआईपी के ऊपर। रिपोर्ट जो भी बना रहे हो बनाओ, लास्ट मोमेंट तक अपने मेंटर्स के साथ बैठो, उनको तड़पाओ, उनको जितना पूछ सकते पूछो, बोर करो, क्योंकि आप लोगों को अपना इंटर्नशिप का प्रेजेंटेशन देना है और वही प्रेजेंटेशन लेके आप लोग इसमें बैठोगे। सर मैं तो सेल्स कर रहा हूं, मुझे तो और कुछ बताया नहीं जा रहा है। सेल्स कर रहे हो ना, कौन सा सेल्स कर रहे हो? एचआर में, सर मैं तो एचआर में तो मैं सिर्फ ये रिक्रूटमेंट का काम कर रही हूँ। रिक्रूटमेंट का काम कर रहे हो ना, उसमें क्या होता है? ट्रेनिंग डिपार्टमेंट होता है, लर्निंग एंड देखो मेरे को नहीं पता है, मैं जितना सीखा हूं तुम लोग को क्लास कर करके सीखा हूं, तो मैं सीख सकता हूं, तो तुम लोग भी, मैं भी स्टूडेंट हूं, तुम भी स्टूडेंट हो। फर्क ये है कि मुझे पैसा मिलता है अपने जॉब के लिए, तुम्हें भी पैसा मिलेगा अपने जॉब के लिए। ठीक है, और एक चीज, इफ समबडी फ्रॉम यू, जो कि 124 लोग यहाँ हैं, कोई प्लेसमेंट से ऑप्ट आउट करना चाहता है कि नहीं सर हम लोग, मैं अपने प्लेसमेंट पे नहीं बैठूंगा, मुझे अपना बिजनेस देखना है, मुझे अपना कुछ और प्लान्स है, मेरे को ये करना है, they just need to write a mail to placement department, that is placement@kesam.in, then I'm opting out of the placement for this particular reason. Next meeting में भी मैं ये चीज बोलूंगा एंड में। Thank you guys for listening me very patiently and hopefully we'll meet in the next meeting. हमारा थर्ड सेम का क्लास कब से शुरू होगा? 11 तारीख खुल रहा है ना, तो आओ ना पहले कॉलेज में दर्शन दो। सर वहां पर लिखा हुआ है 11 को स्टार्ट होगा, इसीलिए पूछ रहा हूँ सर। वहां पर लिखा है रिपोर्टिंग डेट 11 एंड कमेंसमेंट ऑफ क्लास ऑन 11। डेफिनेटली आप लोग आओगे ना, आप लोग को सबसे पहले वो ऑडिटोरियम में दर्शन कराया जाएगा, किससे बोर होते हैं। उसमें पहले आपको सारे फैकल्टी अपना अपना चेहरा दिखाएंगे, मैं फैकल्टी, मैं अमित हूँ, मैं ये हूँ, सारे फिर ये स्टाफ मेंबर्स हैं, फिर ये वो है, ये इसको पकड़ने से ऐसा होगा, इसको पकड़ने से ऐसा होगा, ये सब नाटक होगा। उसके बाद फिर आप लोग हर एक फैकल्टी अपने सब्जेक्ट के बारे में बताएगा। फिर उसके बाद आपको एक सर ज्ञान देंगे आपका बिजनेस एथिक्स के ऊपर। देखो मैं अगर सारा चीज बता दूंगा आप लोग आपका सारा ये खराब करना नहीं चाहता। सर हमारा So I have a doubt. Yes, बोलिए। So actually my internship is getting over on 2nd of August. And मेरा 3 month का था, तो 2nd of May में शुरू हुआ था, तो वो 2nd of August में ही खत्म करेंगे। And they won't let me work from home, तो मैं आ भी नहीं पाऊंगी भुवनेश्वर। So if you have gotten approval from us, definitely you will be allowed to come back on 3rd of August. You should be back on 3rd of August in college. Sir, but actually I have to wait one more day for the report to come back. Like वो सर्टिफिकेट देंगे, तो इसीलिए like I have to August 5 में I'll be in campus. वही तो बोला ना, आप बोलोगे कि मैं सर 5th को आऊंगी, क्यों 5th का होगे? आपको अगर 2 को खत्म हो रहा है, you need to talk to them, सर मेरे को ऑनलाइन में भेज दीजिए, मैं जा रही हूँ, मैं 3 तारीख से मैं कॉलेज में रिपोर्ट कर रही हूँ, you send me everything on online. You can tell them. Okay sir, okay sir. I'll talk to you. Somebody else also said, any more doubt? Tapaswini. Good evening, sir. So actually, I have talked to you someday before regarding that my company want to extend my internship. Means they want to take it for 3rd month. Tapaswini, your case is already approved, so don't worry. I think we have already spoken with Sumita ma'am, and Sumita ma'am already informed us in the SIP meeting. So your case has been already taken care, so don't worry on you. So in that case, I will be reporting to college on 11 July or after that, means on the month of August. You cannot come back on 11 July, no? So sir, but you will be getting. Okay, yes. Sir. So still I have a doubt. Like I am working from home, so will it be okay with that? It depends on you. If you can come to hostel, you can work from here. That is also possible. That you are reporting to the college and then you can do your work from home. That is also possible.
Okay, sir. Thank you so much, sir. So those people who are doing work from home, they can come back and they can come on 11th, they can report on 11th, and they can continue their work from home accordingly. चलो सब लोग चलते हैं घर, मैं भी निकलता हूँ घर. यस अरिजीत. थैंक यू. चलो ठीक है, थैंक यू. मेरा बोरिंग लेक्चर सुनने के लिए. थैंक यू सर. करूंगा धीरे धीरे, सबको और बोर करूंगा. चलिए बाय बाय. Good night, sir. Good night, sir. Bye, sir. Good night, sir. Good night, sir. Good night. Good night. Good night, sir. Good night. Thank you, sir. Good night, sir. Welcome everybody.